Next, the P block elements. P block elements have 6 groups in the periodic table, because we know that P subshell has 3 orbitals, px, py, pz, and it can accommodate 6 electrons. That's why it has 6 groups. Group number 13, 14, 15, 16 and 17 and 18. If we talk about the Mendeleev periodic table, so this will be your 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, and this is your 0. This is that one is according to the Mendeleev periodic table. So, and if you see the period, these are the period number: 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th. These are the periods. So just let's fill the element. आपने ये एलिमेंट को याद रखना है, बिना देखे हुए आप एलिमेंट फिल करो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं. ग्रुप नंबर 13 में है हमारा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्रिलियम, पोलोनियम. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. So these are the elements. You must know all elements, memorize it. Now one by one, if we see the group number 13. Group number 13 is called boron family, because you will study group wise downward. It's a boron family. These 5 elements belongs to boron family. These are boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Okay. So boron, aluminium, indium, thallium and gallium. Atomic number आप लिखेंगे, याद करने की जरूरत नहीं होती. Atomic number of boron we know that is a 5. If you know it is a 5, then you can move downward. 5 plus 8. It become 13. Okay. Then 13 plus 18. Because when we move from the 2nd to 3rd to 4th period, then we have to add 18. So when you add 18, it becomes 31. Again you have to add 18. It becomes 49. Now we have to add 32. 49. After 49, what is the thallium? When you add 32, it becomes 81. So when you move from this is your first period in which helium is present. You added over here from the first period to next period. We are going to add 8. First to second हीलियम हाइड्रोजन था, उसके बाद लिथियम था ना. फर्स्ट में 2 ऐड किया. 2 ऐड करने के बाद बिकॉज इसमें ऊपर कुछ नहीं है तो डायरेक्टली हम सेकंड पे आ गए. सेकंड के बाद 8 ऐड करेंगे, फिर 18, फिर उसके बाद 18 32. ठीक है, 32. तो ये 5, 13, 31, 49 और 81 ये इसका एटॉमिक नंबर. अब देखना इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखता हूँ शॉर्ट में. आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. बोरोन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, इसमें नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम. इससे पहले आ गया हीलियम, तो इसमें लिखेंगे हीलियम. हीलियम का एटॉमिक होता है 2, 1s2, 2s2, 2p1. बोरोन हो गया. उसके बाद नेक्स्ट नोबल गैस जो आती है वो है नियॉन. नियॉन इज 10, तो हम लिखेंगे 3s2, 3p1. 3s2, 3p1.
कौन सी शेल फिल हो रही है? थर्ड, एल्यूमिनियम के केस में, बिकॉज एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। बोरोन में कौन सी शेल है? लास्ट, सेकेंड। तो आपने 10th में इतना तो पढ़ा होगा, जितनी शेल होगी उतना उसका पीरियड होता है। अब इसमें थोड़ा सा और तरीके से देखेंगे। इंडियन इज इंडियम। नेक्स्ट नोबल गैस इज आर्गन, 18 हो गया। 3D 10 भी फिल हो गए यहाँ, 4s2 4p1, 18 plus 10 28, 28 plus 3 31. Okay, 18 plus 10 plus 2 plus 1 is 31. So कौन सी शेल यहाँ फिल हो गई? फोर्थ। So that's why gallium is present in fourth period. उसके बाद आ जाता है थैलियम। कौन सा नोबल गैस है? क्रिप्टॉन, 36, 4d10 5s2 5p1, 36 plus 1 10 46, 46 plus 2 48 and 49। लास्ट है हमारे पास गैलियम। इसमें कौन सा नोबल गैस यूज करेंगे? जीनोन। जीनोन है 54। अब इसमें क्या आ जाएगा? 4f14, 5d10, 6s2 6p1। बस उसको आगे आगे लेते जाना है। यहाँ पे 2s था, 3s आ गया, 4s 5s 6s। यहाँ पे 3p के बाद d शुरू होता है, 3d 4d 5d, यहाँ पे 4f। आगे नेक्स्ट का लिखोगे जो हमने नहीं लिखा 7th पीरियड वाला, उसमें फिर आपका 5f 6d 7s 7p आ जाएगा। So this is about the configuration। 54 plus 14 plus 10 plus 2 plus 1 become 81. So in this way we write the configuration of the elements। 54 plus 14 हो गया आपके 68, 78 हो गई 31। Now what is the common thing in these? You can see is the outermost configuration। See the outermost configuration। So general electronic configuration of boron family we can write it like NS2। इसमें तो दो है ही है, NP1, P में 1 आ रहा है। अगेन N रिप्रेजेंट दी पीरियड नंबर। देखिए इसमें N2 है तो ये सेकेंड पीरियड में है। एल्यूमिनियम में N3 है तो ये एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में है। थैलियम गैलियम ले लो लास्ट, सॉरी कर दिया मैंने, इंडियम थैलियम बोरोन एल्यूमिनियम, सॉरी गैलियम इंडियम एंड थैलियम हो गए। अब गैलियम देख लो, गैलियम में 4s 4p है तो गैलियम इज प्रेजेंट इन फोर्थ। इंडियम में इंडियम इज प्रेजेंट इन फिफ्थ और थैलियम इज प्रेजेंट इन सिक्स्थ। So this is, so we can see this boron family has 3 valence electron। They can form trivalent, but it's not easy to lose 3 electron। Boron B3 positive, Al3 positive, you well know that if you write aluminium chloride तो Al के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 3 positive। Why? Because aluminium lose all the 3 electrons, but it's a little bit difficult। More energy is required, large amount of energy is required to produce such type of ions। They form trivalent ions। B3 positive does not exist because small size होने की वजह से उसको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। तो these element belongs to boron। तो अब ये जो बोरोन फैमिली मैंने बता दी कैसी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ये आपको आना चाहिए। इसकी जो स्टडी है बोरोन फैमिली की, इसकी प्रॉपर्टीज वो भी है हमारे सिलेबस में जब हम इनऑर्गेनिक करेंगे। ओके, सो हम कहाँ तक पहुंचे? बोरोन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने ले ली NS2NP1। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रुप नंबर 14 पे। ग्रुप नंबर 40, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, ऑन द नेम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, कार्बन फैमिली। इसमें क्या क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। एटॉमिक नंबर जैसे उसके थे एक एक बढ़ा देना। कार्बन का 6 है,
6 plus 8 14, 14 plus 8 32, 32 plus 18 50 हो जाएगा, और इसमें 32 ऐड कर देंगे तो 82 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन वैसे लिखेंगे, फर्स्ट कार्बन में हम हीलियम ले लेते हैं 2s2 2p2, बोरोन में 2p1 था, बस वैल्यू भी कर सकता था, लेकिन मैं फिर से लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस जो है वो आप बार बार लिखो। नियोन 10 3s2 3p2 14 हो गए। ओके, नियोन के बाद आपका आर्गन आ जाता है 18, इसमें आ जाएगा 3d10 4s2 4p2, ठीक है, 28 प्लस 4 32 हो गए। आर्गन के बाद आपका आ जाता है क्रिप्टॉन 36 है इसका, 4d10 5s2 5p2, लास्ट में आ जाता है जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2। तो ये हो गया हमारा कार्बन। अब इसमें देखिए व्हाट इज कॉमन थिंग यू कैन सी हियर, outer configuration. So this is periodicity. When you repeat the element after regular interval, so regular interval means there is a gap of 8, 8, 18, 18 and then 32. So when you use these numbers to repeat the element and they come in a one group having the same outermost configuration. So what is the general electronic configuration of these elements? You can easily see it is ns2 np2। तो कार्बन फैमिली में हम ये लिख सकते हैं, इस फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np2। तो ये जो कार्बन फैमिली है, ये हमें पता है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के बेस पे कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। तो दीज एलिमेंट्स आर टेट्रावेलेंट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। इट्स डिफिकल्ट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन, इट्स आल्सो डिफिकल्ट टू टेक 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही मुश्किल है। 4 क्योंकि इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल में 8, तो इसमें 4 है, या तो ये 4 ले या 4 दे, दोनों ही काम मुश्किल है, ना तो ये 4 ले सकता है आसानी से, ना ये 4 दे सकता है। तो ये क्या प्रेफर करेगा, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। सो जनरली कार्बन फैमिली दे फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक सी के 4 बॉन्ड आपने देखे, मीथेन बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो सो दीज एलिमेंट्स आर टेट्रावेलेंट कार्बन फैमिली। अब ऐसे ही हम अगर नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली का लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के एलिमेंट्स में इन्हीं भी चेंज कर रहा हूँ। तो नाइट्रोजन में जाएंगे, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ 7 8 15, और 15 के बाद आ जाता है हमारा 18 ऐड कर दो इसमें 33 51 83। तो चेंज क्या करना है, ये 54 है, चेंज क्या करना है, यहाँ पे 3 एक एक बढ़ गया, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ns2 np3। अब ये ट्राइवेलेंट है ना, इनकी जो वैलेंसी है वो 3 है, बिकॉज इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, they can easily take 3 electron, they cannot give 5 electron, pentavalent शो नहीं करेंगे, they can easily take 3 electrons, so form trivalent, है ना। जैसे नाइट्रोजन अमोनिया लेते हैं, अमोनिया हमने पढ़ा था रिडॉक्स में, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है, -3, है ना, सदा ना अमोनिया ये +1 है और ये क्या हो जाएगा -3। सो नाइट्रोजन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपकी, ns2 np3, ns2 np3। ऐसे ऑक्सीजन पे मूव करोगे तो एक एक और बढ़ जाएगा, वो डाइवेलेंट हो जाएंगे,
तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी आपकी भाई NH2NP4, हैलोजन की बन जाएगी भाई NH2NP5 और नोबल गैस की बन जाएगी NH2NP6। सो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, अगर हम पूछूं कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, तो आप लिखोगे NS2, NS में तो 2 रहने देंगे, NP126, NS2 NP126, सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट इसको फॉलो करेंगे। पी में इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना, अगर पी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ग्रुप 13 हो जाएगा। हमने इसमें क्या करना है, ग्रुप जब फाइंड करते हैं तो अगर आपने पढ़ा है 10th में भी, अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो आप कहते थे ग्रुप नंबर 1, 2 है तो 2, 3 है तो 13, 4 है तो 14, है ना, KLM वहां पे वो कॉन्फ़िगरेशन थी। यहाँ पे आप देखो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया पी में NS2NP1, ये कॉन्फ़िगरेशन, 3 तो इलेक्ट्रॉन ये हो गए प्लस 10 कर दो तो 13 ग्रुप बन गया 3A अकॉर्डिंग टू मैनलीफ। So this is the general electronic configuration for the p block element. p block element में जो लास्ट ग्रुप है शुरू में जो बोरोन है उसको बोरोन फैमिली बोल देते हैं, कार्बन कार्बन फैमिली बोल देते हैं, और देन नाइट्रोजन आ गया उसको नाइट्रोजन फैमिली बोल दिया, ऑक्सीजन फैमिली बोल दिया। ग्रुप नंबर 17 इनको बोलते हैं हेलोजेंस। ग्रुप नंबर 18 इनको बोलते हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। और ग्रुप नंबर 16 का भी नाम है, कम यूज होता है, उसको बोलते हैं कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। जैसे ओर्स आपने देखा होगा, जितनी भी ओर्स हैं चैप्टर 10th में भी था मेटल्स वाला, ऑक्साइड की फॉर्म में होती है या सल्फाइड की फॉर्म में ज्यादा होती है, ओर फॉर्मिंग बोलते हैं इनको कैल्कोजेंस। तो हैलोजन एंड नोबल गैसेस, दीज टू ग्रुप्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी हैलोजन की -1 होती है, बिकॉज अगर हम हैलोजन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दें तो हैलोजन जो है सिर्फ हैलोजन की NS2NP5, इधर भी आप देख लो NS2NP5 means they required only one electron to get the noble gas configuration. So they have a tendency to take up electrons. So these elements are called highly electronegative elements. These are जैसे alkali metal, alkaline earth metal थे electropositive, तो ये हैं electronegative element because they have a tendency to gain electron. इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लेना, F ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, बन गया F नेगेटिव, they form negatively charged ion. So why they are highly electronegative? Out in the periodic table which 3 elements are highly electronegative? तो हम कहेंगे ये 3 एलिमेंट हैं जिनकी they are the most electronegative element in the periodic table, MOF. They have a tendency to gain electron. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ आ जाएगी बात। तो electronegative elements are the element which have a tendency to take up electron. So these come under the category of non-metals. Alkali metal थे जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो थे metals. Alkaline earth metals भी metal थे। अब ये जो हेलोजेंस हैं या ऑक्सीजन के कुछ मेंबर हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जो सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आर्सेनिक है, यहाँ पे एक बाउंड्री है वो कट करती है हमारी बोरोन से सिलिकॉन, आर्सेनिक, थैलियम, एस्टेटाइन, ये मेटलॉइड्स हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एक बाउंड्री सी है ऐसे जो डिस्टिंग्विश करती है मेटलॉइड को, नीचे बाउंड्री के मेटलॉइड्स आ जाते हैं बीच में, है ना। जैसे आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, ये सब मेटलॉइड मीन जिनकी प्रॉपर्टीज हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो noble gases are, you can say, inert gases. They do not react, they do not form compound except xenon.
बाकी जो फ्लोरीन का फैमिली है, जो हेलोजन्स हैं, दे आर द मोस्ट electronegative element. They have a tendency to take. That's why the bond is formed. Ionic bond is generally formed between the group number 1 and group number 17. आपने सुना होगा NaCl. NaCl bond क्यों बनता है? Because Na is metal that has a tendency to lose one extra electron. और Cl has a non-metal that has a tendency to take one electron. तो Na उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी. So this is about the p block element, and general configuration of p block element is ns2 and p1 to 6.